اربعین، جیسے میری آپ نے پچھلی بھی رپورٹ دیکھی اور جس طریقے سے این ڈی ٹی وی ایک مہا کوریج آپ کو دکھا رہا ہے کہ آخر یہ اربعین کیا ہے، کیسے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑ لوگ نجف سے لے کے کربلا تک پیدل آتے ہیں، اور انہیں کون کھانا کھلاتا ہے، کون ان کو پانی پلاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں اگر دیکھنی ہے تو ہمارے پاس ایک بینر ہے کاروان ہند، جہاں پہ کاروان ہند یعنی ہندوستان کے نام جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کے جو پورے سنچالک ہیں میرے سامنے، یہ آپ کے سامنے شخص ہیں علی صاحب، بہت بہت سواگت ہے آپ کا۔ اور آپ کو دکھا دوں میں جو مشہور پوری جو کہا جاتا ہے یہ اربعین میں جو امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، وہ پورے انٹرنیشنل فیسز آج ہمارے ساتھ این ڈی ٹی وی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرحان علی وارث صاحب جو مشہور نوع خان ہیں، ہندوستان ہی نہیں پورے انٹرنیشنل میں جو نام جانتے ہیں، مولانا کا قلب الشیخ صاحب، ڈاکٹر قلب الشیخ صاحب ہیں، اور یہاں آپ میرے سامنے خود دیکھ رہے ہیں آصف صاحب ہیں، جنہیں دیش ہی نہیں پوری ورلڈ میں، انفیکٹ یو کے میں بھی ہر جگہ پہ اپنا ایک حسینیت کا پرچم بلند کرتے ہیں۔ وہیں اتنے سارے لوگ ہیں، ان سب کو جوڑنے کا کام کیا وہ آغا نے کیا۔ آپ سے سب سے پہلے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے آخر یہ کیا ہے کاروان ہند، کیونکہ ابھی انڈیا کی جنتا اور انفیکٹ پوری انٹرنیشنل سب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کاروان ہند کیا ہے، یا کون، کیسے آپ یہ پورا مینجمنٹ کرتے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ ایک ایک لوگ کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، کوئی بھوکا نہیں جاتا، وہ کیا ہے؟ کارون ایک موقف ہے جو نجف سے کربلا کے بیچ میں جو لوگ چلتے ہیں، جو سفر عشق ہے اور محبت ہے مولا حسین سے، وہ کے بیچ میں ایک نجف کی طرف ایک موقف ہے جو ہمارے 5.5 ایکڑ میں جگہ ہے، جس میں ہم لوگوں کو رہنا، کھانا، ڈاکٹر، مساج، جو بھی ضرورت کی چیز ہے جو یہاں جو واکنگ پہ واک کرنے کے بعد میں لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے، وہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور ایک ٹائم پہ یہاں پر 7,000 سے زیادہ لوگ سوتے ہیں، 15 سے 20 ہزار لوگ کھانا کھاتے ہیں، اور مساج ٹیم ہے کیونکہ لوگ جو بہت زیادہ چل کے آتے ہیں، 27 کلومیٹر ہے مولا علی کے حرم سے یہاں تک، تو مساج بہت امپورٹنٹ پارٹ ہو جاتا ہے اس کا۔ ڈاکٹرز ہے، ڈینٹسٹ ہے، ایم بی بی ایس ہے، کیونکہ بہت چھالے ہو جاتے ہیں پیر میں، اس کے لیے اوور آل اس کو اے سی ہے، پورا موقع پہ ہمارا اے سی ہے جس کو ہم جنریٹر سے چلاتے ہیں۔ تو اوور آل یہ انڈیا کا پہلا موقع ہے، 2016 میں چالو ہوا تھا، ایک چھوٹے سے چیز سے چالو ہوا تھا، آج 2024 میں بہت بڑا موقع بن گیا۔ تو کہاں سے آپ کے اندر یہ چیز آئی اتنی بڑی؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی ایسے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ شردھالو کے روپ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہر چیز مہنگی کر دی جاتی ہے، کھانا مہنگا ہو جاتا ہے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو فری آف کاسٹ، کہاں سے وہ چیز ہے؟ یہ تو محبت ہے مولا حسین، یہ ایکچولی ہم جب چلتے تھے تب ہمارے اردو زبان کے کھانے نہیں ملتے تھے، 2013 میں کھانا اور چائے نہیں ملتا تھا، تو تبھی میں نے ایک دعا کیا تھا کہ اللہ مجھے بھی ایسی خدمت کا موقع دے۔ تو یہ اس کے بعد میں ایک لوکل سے ملا، اور وہ لوکل نے اس سے بات ہوئی میری، 3 سال تک بات ہوئی، اور 3 سال کے بعد میں اس نے بولا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ مل کے اس کو کرتے، اور آج یہ موقع پہ کریے۔ ٹھیک ہے آجو صاحب، آپ بھی کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ ایک ایسا مرکز جہاں پہ ہر ایک قوم کا انسان یہاں آتا ہے، کسی سے کوئی دھرم نہیں پوچھا جاتا، اور آ کے سب ایک ہی صدا ہوتی ہے، وہ کس بنا پہ کتنی بڑی وہ طاقت ہے اور جو آپ سب کو ایک اکٹھا کر دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کائنات کی وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے زمانے کو امن کا پیغام دیا ہے۔ آج پوری دنیا میں ہر ایک انسان جو ہے وہ امن کا متلاشی ہے، لوگ امن ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں سے ہمیں امن ملے۔ امام حسین علیہ السلام ایک زندہ مثال ہے کہ اگر آج بھی کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ حسین ابن علی بغیر رنگ و نسل کی تمیز کے، بغیر قوموں کی تمیز کے، ساری کی ساری انسانیت کو، اسلام کے تمام ارکان کو ایک دھاگے میں جو پرو رہا ہے وہ ایک ہی ہے جسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یہ اربعین کی واق جو ہے یہ دنیا کے سامنے اتحاد کی ایک مثال ہے، خواہشات نفس کی قربانی کا نام ہے، یہ مادیت سے معنویت تک کا سفر ہے، انسان کے بدن سے روحانیت تک کا سفر ہے، اور یقیناً یہ ایک ایسا تربیتی کنونشن ہے، یہ ایک ایسا انسانیت کی تعمیر کے لیے ایک ایسا انسان ساز کارخانہ ہے جس سے بہت سے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سنوار کے اور حسینی افکار لے کے یہاں سے واپس جاتے ہیں۔ بالکل مولانا کلب الرشید صاحب بھی، مولانا صاحب آپ جس طریقے ہندوستان سے ہیں، ہم نے یہ کاروان ہند بھی ہے، ایک کال بھی آپ نے میں نے سنی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ امام حسین نے خواہش کی تھی کہ وہ ہندوستان آنا چاہتے ہیں، ہند مطلب ان کا لفظ تھا، اور یہاں عراقیوں سے بھی ہم ملے تو وہ ہمارے ہند کو کے جو جھنڈا ہے اسے بھی بہت چومتے ہیں،
क्या मानते हैं कि वो इस बिना पे भी है, और जो ये सारी सारी चीजें आप ये देख रहे हैं, सब मोहब्बत एक तरफ एक साथ नजर आ रही है? देखो अली अब्बास, सबसे पहले कि आपसे और आपके ज़रिए देखने वालों तक ये बात पहुंचाना ज़रूरी समझता हूँ, या हुसैन कहते हुए एनडीटीवी का शुक्रिया। एनडीटीवी का शुक्रिया कि हिंदुस्तान में 6 करोड़ शियाओं की मौजूदगी को इम्पोर्टेंस देते हुए उन्होंने अपना टेलीविज़न चैनल और अपना एक जर्नलिस्ट इराक़ के सफ़र पे भेजा। अली अब्बास, एज एन शिया आपके लिए प्राइड है कि आप करबला को कवर कर रहे हैं। एज ए जर्नलिस्ट भी आपके लिए प्राइड होना चाहिए, क्योंकि आप मोहसिन इंसानियत की उस निशानियों को कवर कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि दुनिया में होने वाली सारी बहसों में एक ही बहस बहुत अहम है, ताकत हक है या हक ताकत है। मुझे लगता है कोई धर्म ऐसा नहीं है जो हक को ताकत ना समझता हो, और वो धर्म हक को ताकत समझा ही नहीं सकता जब तक हुसैन के कैरेक्टर को अपने अंदर उतार ना ले। चूंकि कहने वाले बहुत रहे, मगर 18 साल के अकबर के सीने से बर्छी का फल निकालने वाला सिर्फ एक हुसैन रहा। 6 महीने के अली असगर के गले से तीर निकालने वाला सिर्फ एक हुसैन रहा। बात करने, पीपल टॉक्स, बट दे कैन नॉट शो देयर लॉयल्टी टू ह्यूमैनिटी। हुसैन एक ऐसा मरकज है जिसने, आप देखें ना, जमीन खरीदी और अपनी जमीन पे दुनिया से गए। मुझे इससे बहस नहीं है किसने मारा, मुझे इससे बहस नहीं है कितनी तादाद थी, मुझे इससे बहस नहीं है कि किन किन आर्म्स को इस्तेमाल करके मारा। पर मैं एक चीज जानता हूँ कि मारने वाला खत्म हो गया और मरने वाला बाकी है। अजीब चीज है, जिसके पास पानी था वो खत्म हो गया, जो प्यासा था वो बाकी है। अजीब चीज है कि आप देखें, सिर्फ एक अली नहीं, मुझे लगता है 1400 पिलर, आसिफ साहब 1400 पिलर है। अजीब फलसफा है हुसैन का। इस 1400 पिलर में जाने वाला मुसाफिर ये सोचता है सफर खत्म हो गया। असल में तो 1400 पिलर के बाद हुसैन का और हुसैनियत का सफर शुरू होता है। त्याग का, बलिदान का, सेक्रीफाइस का, ह्यूमैनिटी को समझने का, दूसरों को आसानी देने का। आज मुसलमानों में ये हालत क्यों है कि उनको आतंकवादी समझ लिया जाता है, दाढ़ी और टोपी देख के उनके केसेस रॉन्ग वे में डाल दिए जाते हैं, उन्हें नेगेटिव सोचा जाता है। क्यों? तलाश करें, उसके दिल में हुसैन नहीं होगा, क्योंकि अगर उसके दिल में हुसैन होगा तो कभी उसे उस लाइन से तफ्तीश नहीं किया जाएगा। तलाश करें, उसके दिल में अली नहीं मिलेगा, अगर उसके दिल में अली मिलेगा तो कभी इंटेलिजेंस डाउट ही नहीं करेगी, पॉसिबिलिटी नहीं। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, कई जगहों की मिसाल दे सकता हूँ। तो हुसैन इब्न अली का बड़ा कमाल है, और ये एक दस्तरखान है, बहुत बड़ा दस्तरखान है। यू 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 आर विटनेस टू सीन इन द ह्यूमन हिस्ट्री के लोगों के महल बहुत बड़े हैं, महलों के दस्तरखान बहुत बड़े हैं, लेकिन क्या 110 किलोमीटर का किसी का दस्तरखान है तो मुझे दिखाओ। हाँ, 110 किलोमीटर का दस्तरखान नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक अपनी शिया कम्युनिटी का एक बंदा है अमेरिका में, वो यहाँ पे पानी की पूरी लाइन लगा रहा है, पूरी वाटर सप्लाई। सो मेरा कहना यह है कि अली हैं, अली के साथी हैं, अली को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ये जितने लोग हैं जो यहाँ दस्तरखान लगा रहे हैं, इनका दस्तरखान गैब में जो हमारा इमाम बैठा है उसके मैनेजमेंट से चल रहा है। वी ऑल फॉलोअर्स ऑफ मेहदी। और मुझे लगता है कि तमाम शियों के लिए, बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए, बल्कि तमाम इंसानों के लिए, ठीक है आसिफ साहब और हमारे नौर खान पाकिस्तान से, लेकिन जिस वक्त ज़ियारत की बात हो रही है और जिस वक्त यहाँ ज़ियारतें बढ़ी और मशी का मामला बढ़ा, तब तो एक ज़मीन एक थी, सरहद एक था। तो मेरा अपना पर्सनल मानना है कि एहसास वही है, सरहद बदलने से एहसास नहीं बदलता। हमारी सांसों में हुसैन है, हमारी नज़रों में हुसैन है, निगाहों में हुसैन है, फैसलों में हुसैन है, अजीज़ों में हुसैन है, अजीज़दारी में हुसैन। हमारा माजी हुसैन के साथ, हाल हुसैन के साथ, मुस्तकबिल हमारा हुसैन के साथ, जीना हुसैन के साथ, मरना हुसैन के साथ। द मैसेज इज कि चलें चलें चलें, इसलिए कि चलने से मंजिल छूटती है, मगर हुसैन के रास्ते में चलने से मंजिल मिला करती है, और हुसैन मिला करता है। बिल्कुल। फरहान साहब, एक आपका एक नोहा भी सुना है, बहुत फेमस है, कि मैं पैदल चला करबला, नजफ से, यानी वो करबला के ऊपर है। एक जो ये पैदल चलते हैं लोग, क्या है वो, थोड़ा जो व्यूवर्स अभी जानना चाहिए आखिर हैं क्या, क्यों बिना पे आप पैदल चलते हैं, और कैसे लोग एक दूसरों की हेल्प करते हैं। इनफैक्ट कारवां हिंद जिस तरीके से हमने खुद देखा होगा। देखिए, इश्क वो है जिसमें सोचा नहीं जाता, इश्क में सिर्फ अमल किया जाता है। जब अपने आप को इंसान तकलीफ में तभी डालता है जब वो इश्क में होता है। इमाम हुसैन ने अपना घर लुटाया, सर कटाया। इमाम हुसैन का अल्लाह से प्यार और लाड था ही इतना, इमाम हुसैन अगर कह देते है अल्लाह मुझे सर नहीं कटाना, मुझे घर नहीं लुटाना, मुझे वैसे ही इम्तिहान कबूल करे, तो अल्लाह शायद इम्तिहान ना भी लेता, क्योंकि रसूल ने बड़ी कुर्बानियाँ रसूल ने भी दी। लेकिन इमाम हुसैन रसूल ही की औलाद हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तू जैसा चाहता है वैसा करूँगा। तू तकलीफ उठा, तू चाहता है कि मेरा सर कटे, मैं सर कटाऊंगा। तू चाहता है मेरा घर लुटे, मैं घर लुटाऊंगा। उधर सैयद सज्जाद कहते हैं कि ये इम्तिहान जो माओ बहनों को लेके जाना है, ये मैं करूँगा।
उधर बीबी ज़ैनब कहती हैं कि हुसैन का नाम मिटाने के लिए लोग बढ़ेंगे, हुसैन मैं वादा करती हूँ तेरा नाम घर घर और तेरे कातिल के घरों में तेरा मातम करवाऊंगी और तेरे दुश्मनों की सरहदों पे भी तेरा अलम लगवाऊंगी। आज देखिए दुनिया के हर मुल्क में, हर शहर में गाजी अब्बास का अलम लगा है और ये बीबी ज़ैनब का करम है, बीबी ज़ैनब की बड़ी कुर्बानी है। सैयद सज्जाद और बीबी ज़ैनब ना होते अल्लाह के इस मिशन में तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम मिटाने की तो पूरी कोशिश कर ली गई थी कि अल्लाह जिसका नाम बरकरार रखे। ये जो हम सफ़र कर रहे हैं ये सफ़र इश्क का सफ़र है। इसमें दो तीन बातें हैं मौलाना कराम की मौजूदगी में, रुशद साहब की मौजूदगी में, अलवी साहब की मौजूदगी में से तायद हासिल करते। मैं तो तिफल मकतब हूँ, इन सबसे सीखता हूँ कि दो तीन चीज़ें हैं जो मशी के दौरान, एक तो वो जो ये वही सफ़र है कि जिसमें आले मोहम्मद ने कांटों पे सफ़र किया, थकते थे तो लोग कोड़े मारते थे, यहाँ आप थकते हैं तो लोग आराम के लिए आपकी टांगें दबाते हैं, मसाज करते हैं। आप प्यासे होकर बैठते हैं तो आले मोहम्मद को पानी नहीं दिया जाता, लश्कर को पानी पिलाता था शिब्र, लेकिन आले मोहम्मद को प्यासा रखता था, बीबी सकीना को प्यासा रखता था। यहाँ पर लोग मौक़िफ़ जो लगाते हैं खुद नहीं खाना खाते, पहले दूसरों को खिलाते हैं। अभी मौक़िफ़ कारवान हिंद में अली मदानी, शहजाद भाई, इनके तमाम जितने भी वॉलंटियर हैं सब अपने बराबर बराबर का काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने इनको सोते हुए नहीं देखा। मैंने इनको ये नहीं देखा कि ये खाना पकाने पहले बैठ गए। फिर एक अजीब बात यह है कि इनसे पूछा गया कि आप एक वक्त में कितने लोगों के लिए खाना बनाते हैं, तो इन्होंने कहा हम कम से कम 15,000 लोगों के लिए खाना बनाते हैं। तो फिर सवाल किया गया कि हर बंदा एक ही बार खाता है वो खाना? कहते नहीं, 2 से 3 बार खाता है। अगर 3 बार भी लगाएं तो 15,000 को 45,000 कौन कर रहा है, ये एक राज है। ये ऐसी खिदमत है, इन्होंने पूरी दुनिया को यकजा कर दिया। इमाम हुसैन की करबला में देखिए क्या क्या मौजज़ा है। देखिए हम मेरी मेरी तो पैदाइश मेरे वालिद साहब की पैदाइश इंडिया के शहर दिल्ली का एक करीब जो नोएडा है, नोएडा डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक गांव है छौलस, छोटा सा शहर है छौलस, वहाँ से हमारा ताल्लुक। तो वहाँ से हिजरत करके हम लोग पाकिस्तान आए। तो मैंने जब मैं इंडिया में गया और इंडियन मोमिनीन जब यहाँ हमें मिलते हैं तो मुल्क की मामलात क्या हैं ये इससे अलग बात है, गवर्नमेंट के मामलात क्या हैं या जो भी गवर्नमेंट लेवल पे दोनों ममालिक के मामलात क्या हैं, लेकिन हमने जो इंडिया के लोगों से मिले, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, बड़ा एहतराम और प्यार से मिलते हैं। हर जगह अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन हमें जितना इत्तेफाक हुआ, जितना मिलने का हुआ, हमें सारे अच्छे लोग मिले, हमें सारे प्यार करने वाले मिले। ना हिंदुओं में कोई तासुब मिला, ना मुसलमानों में कोई तासुब मिला। और यही वजह है कि ये इंडियन मौक़िफ़ है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान भी और दीगर ममालिक से आए हुए लोग रोज़, यानी 3 मजलिसें रोज़ होती हैं, नजर न्याज अलग है, खाना अलग है, आराम का सिलसिला अलग है, 3 मजलिसें रोज़ होती हैं और कई दिन तक रहती हैं। तो ये एक जमा कर दिया। दूसरी वजह जो है मिशी की वो ये है कि जब मेरे वक्त के इमाम का ज़हूर होगा तो जब इमाम सदा लगाएंगे नुसरत के लिए तो हम सब लब्बैक या हुसैन कहते हुए जाएंगे, और जब जाएंगे तो ये ज़मीन तंग हो जाएगी। आपसे मैं कहता हूँ आम दिनों में ज़रा चल के दिखाएं, इश्क के बगैर आप 2 किलोमीटर में थक जाएंगे, कभी घर पे वॉक करके देखें। लेकिन यहाँ पर ज़मीन पता नहीं कैसे खिंच जाती, कैसे हम करबला पहुँच जाते हैं। ये प्रैक्टिस उस वक्त की भी है कि जब वक्त के इमाम का ज़हूर होगा। और दूसरी चीज़ ये कि ये वादा है मेरे इमाम का कि मैं तुम्हारे दरमियान कहीं ना कहीं हूँ, किसी न किसी रूप में हूँ। हो सकता है किसी ज़ाहिर को खाना खिला रहे हो मौला, हो सकता है किसी ज़ाहिर का सर दबा रहे हो मौला, हो सकता है किसी को पानी पिला रहे हो सकता है साथ साथ मातम कर रहे हो, हमें नहीं पता। यहाँ बहुत सारे वाकयात ऐसे मिले हैं कि एक शख्स आया, उसने कहा कि अपने वक्त के इमाम को पहचानो, ये राज बता रहा हूँ। वो कहता है मैंने पलट कर देखा तो वो शख्स जा चुका था, तो किसी की आवाज़ आई, तूने अपने वक्त के इमाम की ज़ियारत कर ली मगर तूने उनको पहचाना नहीं, वो तेरे साथ साथ चल रहे थे। तो मेरी दुआ है कि मेरे वक्त के इमाम की भी ज़ियारत हो और इसी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र कर सकते, जैसी वहदत यहाँ है ऐसी वहदत तमाम मुल्क के तमाम दुनिया के ममालिक में हो जाए, और ये फ्रीडम और ये जो एक इत्तेहाद का माहौल है ये पूरी दुनिया में कायम हो जाए। और अल्लाह भी यही चाहता है कि पूरी दुनिया में अमन व अमान रहे। आखिर आखिरी सवाल सबसे एक 30-30 सेकंड में आप सब संक्षेप में आंसर दीजिएगा। क्या अरबईन और मुहर्रम और इज़ादारी इस सब का एक क्या मैसेज है जो पूरी कौम पूरी दुनिया के लिए जो बताया जा सकता ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी एक एक ये वर्ड है जो ये आप देख सकते हो, ये रोड पे जो लोग चलते हैं उनको इतने प्यार से खाना खिलाते हैं, ये किधर होता है पूरे वर्ल्ड में? इतना बड़ा इज्तिमा होता है। आज 25 मिलियन लोग आते हैं। आज दूसरी कंट्री में 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन लोग में आज वहाँ पर रहते हुए में रखती है। मैनेजमेंट आगे पीछे हो जाता है, मैनेज नहीं कर पाते, मगर यहाँ 25 मिलियन लोग आते हैं,
और उनको प्यार मोहब्बत से खाना खिलाया जाता है। एक छोटे से बच्चा भी टिश्यू पेपर देता है, तो ये इंसानियत है। मौला हुसैन है, इंसानियत की जगह है इंसानियत। आसिफ साहब, ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इमाम हुसैन ने कायनात के हर एक इंसान को खौफ से जुदा कर दिया है, और हुसैन ने इंसान को फिक्री तौर पे हमेशा हमेशा के लिए अपना अतात गुजार कर दिया। जुल्म के खिलाफ खड़ा होना और मजलूम की हिमायत में रहना कता इस बात से कता नज़र कि वो किस मसलक और किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। करबला में कुछ शहदा ऐसे भी हैं जो मुसलमान नहीं थे लेकिन जुल्म के खिलाफ थे, मजलूम के साथ थे। करबला का यही पैगाम है, जहाँ जहाँ भी जुल्म हो उसके लिए आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये सिर्फ इमाम हुसैन ने मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसी एक मज़हब के लिए नहीं, आलमीन के लिए पैगाम दिया है कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से आवाज़ उठाओगे उतने ज़्यादा नुकसानात तुम उठाओगे। तो ये जो प्रोटेस्ट है, हम जब अपने अपने मुल्क में, हर मुल्क में कोई ना कोई मसला जब होता है तो हम सब निकल जाते हैं। कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए, पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, तो हम एहतजाज करने के लिए, जो हर मुल्क में कानूनी और शरई हक है, एहतजाज के लिए हम निकलते हैं कि ये जुल्म हो रहा है। अब ये नहीं देखते बराबर में कौन शिया, कौन सुन्नी, कौन देवबंदी, कौन हिंदू, कौन सिख, कौन ईसाई। हम कहते हैं नहीं यार, गलत हो रहा है, इसके लिए आवाज़ बुलंद करो और एहतराम के दायरे में, इज्जत के दायरे में, ताकि आपकी अपनी वकार, आपका अपना वकार भी कायम रहे जो आले मोहम्मद ने आपको अता किया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जुलूस है ना, जिस मुल्क में भी निकले, जो इंसानियत से प्यार करता है उसको चाहिए कि वो इमाम हुसैन के जुलूस में शिरकत करे, वो भले मातम करता हो या ना करता हो, वो गिरिया करे या ना करे, लेकिन खड़ा तो रहे हुसैन के साथ। सिर्फ शिया की जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ हिंदू की जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जो इंसानियत से प्यार करे। बहुत कम लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो जो कुछ तुम्हारे पास है वो खुदा का है, जो कुछ दूसरे के पास है वो तुम्हारा नहीं है। दूसरे के माल की हिफाजत करो, खुदा तुम्हारे माल की हिफाजत करेगा। दूसरे की जान की हिफाजत करो, खुदा तुम्हारे जान की हिफाजत करेगा। दूसरों के लिए ऐसे बन जाओ कि दूसरा तुम पे भरोसा करे, खुदा तुम्हें इतना बुलंद कर देगा कि गर्दन कट जाएगी मगर ज़िंदगी जुदा नहीं होगी। हुसैन करबला में 2 मकाम पे ज़िंदगी का सबूत देते हैं। गर्दन कटती है तो गर्दन नौ के नेज़ा पे बोल रही है, और शाम गरीबा में जिस्म करबला में बोल रहा है। मतलब यहाँ भी ज़िंदगी है और वहाँ भी ज़िंदगी है। वहाँ हुसैन अवाम से बात कर रहे हैं और यहाँ अपनी बेटी से। तो हुसैन का सोशल देखना है तो शाम गरीबा में देखिए कि उन्होंने अपने घर को अकेले नहीं छोड़ा, हालात जैसे भी हों आवाज़ का जवाब दिया। इसका मतलब यह है कि हर मर्द को अपने घर के साथ खड़े रहना चाहिए, हालात जैसे भी हों। और रास्ते में काफिले के साथ हुसैन उस अरब की दुनिया में कुरान की ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हैं, और इस गुफ्तगू का ऐलान उस चंद सरों के लिए नहीं था जो सुन रहे थे खड़े होके। वो दरबार में जो बैठा सोच रहा था कि हमने मार दिया, उसे बताने के लिए कि हम मरा नहीं करते, क्योंकि मौत उन्हें मारती है जो मौत के बाद पैदा हुए, जो मौत के पहले पैदा हों वो मौत उनके हुक्म से चला करे। तो सुना आपने ये किस तरीके से बताई पूरी करबला, और ये अरबईन क्या है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये चारों जो मशहूर शख्सियत थी उन्होंने साफ तौर पे सिर्फ यही बताया कि इमाम हुसैन का जो पैगाम है वो इंसानियत का पैगाम है, और जितने भी लोग इंसानियत के रास्ते पर चलते हैं वो इमाम हुसैन के रास्ते पर चलते हैं। सहयोगी समीर के साथ मैं अली अब्बास नकवी, NDTV के लिए।